نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ عزیزان کرامی، درس دعوت القرآن کے حوالے سے آج کی یہ دوسری نشست اور قرآن مجید کی دوسری صورت کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس صورت کا نام جیسے کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے سورۃ البقرہ ہے، اور قرآن مجید میں حجم کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی صورت ہے، اور جہاں حجم کے اعتبار سے بڑی صورت ہے اسی طرح مقام و مرتبے میں بھی یہ اس کا اعلیٰ مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی فضیلت خود اپنے زبان میں ارشاد فرمائی ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین دور ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ ایک اثر ہے اس سورت کا کہ جس گھر کے اندر تلاوت ہوتی ہے تو اس تلاوت کی وجہ سے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے شیاطین جنات کا اثر اور ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے ورد کرنے کا، یعنی اس کو بار بار پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کی جو فضیلت ہوتی ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے، ان کے کسی جز کی وجہ سے، ان کی کسی خاصیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جس چیز کو بھی دیکھیں، کسی کی کسی خوبی کی وجہ سے اس کی شہرت ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی آتی ہے، یعنی ہر چیز کے اندر ایک ایسا جز ہوتا ہے جو اس کی فضیلت کا سبب بنتا ہے، اس کی شان و شوکت کا، اس کے تعارف کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی جو چوٹی ہے وہ سورۃ بقرہ ہے، یعنی قرآن مجید مکمل اعلیٰ کتاب ہے، فضیلت والی کتاب ہے، لیکن اس کا جو قرآن مجید کا جو شان و رتبہ اور مرتبہ ہے، وہ شان و شوکت جو ہے اس کی، وہ سورۃ بقرہ کے اندر ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ کو قرآن مجید کی چوٹی کہہ دیا، قرآن مجید کی کوہان کہہ دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن مجید تمہاری شفاعت کرے گا۔ اور اس کے اندر دو صورتیں ہیں، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران، یہ آخرت میں قاریوں کے اوپر دو چمکتے ہوئے بادلوں کی طرح ہوں گی۔ یعنی اس منظر کو ذرا اپنے آنکھوں کے سامنے رکھو، جس منظر میں، یعنی حشر کا وہ منظر ہے جس کے اندر کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی راحت کا ذریعہ نہیں ہوگا، کوئی بادل نہیں ہوگا۔ تو اس وقت جب انسان کی یہ کیفیت ہوگی کہ یہ مشقت میں مبتلا ہوگا، تو اس وقت یہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران اس پڑھنے والے، یعنی اس قاری کے اوپر انہوں نے سایہ کیا ہوگا، اور دو چمکتے ہوئے گھنے بادلوں کی طرح یہ انسان کے سر کے اوپر ہوں گی، اپنے پڑھنے والوں کے سروں کے اوپر ہوں گی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید آخرت میں قرآن مجید کے قاری کو لایا جائے گا، تو اس حال میں وہ قاری آئے گا کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران یہ دونوں صورتیں اس قاری کے آگے آگے چل رہی ہوں گی۔ یعنی اس سے بھی اب قاری کا وہ اعزاز اور مرتبہ اور اس کی وہ شان و شوکت وہ نمایاں نظر آتی ہے کہ قرآن مجید کی یہ دو صورتیں، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران، یہ اس قاری کے آگے آگے پروٹوکول کے لیے، اس کا اعزاز و احترام کرنے کے لیے اور اس کی عزت بڑھانے کے لیے ان کے آگے آگے ہوں گی، حتیٰ کہ کوئی تکلیف نہیں آنے دے گی، کوئی مشقت نہیں آنے دے گی۔ یہ اسی وجہ سے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ کی یہ فضیلت بیان کی ہے۔ اب ان حدیثوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو علماء اس کا ایک مسئلہ یہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ یہ جو ساری فضیلتیں ہیں، یہ فضیلتیں اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر جو احکامات، عملی احکامات، بدنی احکامات، جو عمل کے احکامات سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کے اندر آئے ہیں، باقی صورتوں کے اندر بھی عملی احکامات ہیں، لیکن زیادہ تر بہت سارے احکامات جو ہوتے ہیں، مین جو بڑے بڑے احکامات ہیں، وہ انہی صورت کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ ان کی تلاوت کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے اور ان احکامات کو مانتا ہے، تو ان کی شان و شوکت، اس آدمی کی شان و شوکت یہ ہوگی کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعزاز دے گا، اور یہ دونوں صورتیں اس کو پکڑ کر جنت تک لے جائیں گے۔
थी सूरत बकरा की फजीलत। अब आते हैं सूरत बकरा की तफसील के बारे में। सूरत बकरा की तफसीर क्या है, आइए मुलाज़ा फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। जैसा कि आपने अभी समझ लिया होगा कि कुरान मजीद के अंदर कुछ सूरतें ऐसी भी हैं जिनकी सूरतों के शुरू में ये चंद हरूफ तहज्जी के जो जुमले हैं ये अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किए हैं। जैसे कि अलिफ लाम मीम हा मीम आइन सीन काफ, अलिफ लाम मीम स्वाद वगैरह वगैरह, ये जो जुमले लाए गए हैं इनको हरूफ मुक़त्तात कहते हैं। और ये हरूफ मुक़त्तात इस वजह से इनको कहा जाता है क्योंकि इनको काट काट कर पढ़ा जाता है, इनको मिला कर नहीं पढ़ा जाता। जैसे जुमलों की सूरत के अंदर कुरान मजीद को पढ़ा जाता है, इसी तरह इनको नहीं पढ़ा जाता। यानी अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे, इसको अलम नहीं पढ़ेंगे, और इसी तरह हा मीम पढ़ेंगे, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो इस वजह से इनको अलग अलग करके हरूफ तहज्जी की शक्ल में जो पढ़ा जाता है, इस वजह से इनको हरूफ मुक़त्तात ही कहा जाता है। बाकी रहा मतलब इनका बाकी रहा मसला इनके मानी मफ़हूम का। कुरानी मजीद के अंदर इनको ज़िक्र तो किया गया है, लेकिन मुफस्सिरीन ने इसका तर्जमा बयान करने से और इसके मतलब बयान करने से गुरेज़ इख्तियार किया है। किसी मुफस्सिर ने किसी तफसीर के अंदर इसका कोई तर्जमा नहीं आया। और बाकी रहा मसला ये है कि इन हरूफ का कोई माना मतलब भी है या नहीं। तो उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ ये हरूफ जो है ये भी मानी रखते हैं, इनका मानी मतलब मफ़हूम है, लेकिन हमें पता नहीं है, इस वजह से हम बयान नहीं करते, वरना इसका है सही। अगर इसका मानी मतलब ना होता और इसका कोई इशारा ना होता तो ये तो हकीम के एक कलाम में नक्स पैदा हो जाता है। यानी अल्लाह पाक एक ऐसा कलाम है जिसके अंदर कुछ ऐसे हरूफ भी हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई मफ़हूम नहीं है, जिनका कोई मानी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। तो इनका मानी भी है, इनका मतलब भी है और इनका कोई मफ़हूम भी है, लेकिन ये मफ़हूम है क्या, अल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह खूब जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को पता है। अल्लाह ताला के बताने के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन हरूफ के मानी और इनके रमूज़ात का इल्म है। क्योंकि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन हरूफ के रमूज़ का इल्म ना हो तो फिर तो ये बात लाजिम आएगी कि कुरान मजीद एक ऐसी शख्सियत पर नाजिल हो रही है जिसको ख़ुद को पता नहीं है इनका मतलब क्या है, तो वो आगे कैसे हिदायत बनेगी। इसी वजह से जो समझ आती है बात ये है कि अल्लाह को भी पता है और अल्लाह के बताने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन हरूफ का इल्म है। बाकी उम्मत को, आम उम्मतियों को अल्लाह तबारक व तआला ने बताने से ये पोशीदा रखा है। और एक बात जो मेरे जहन में आती है वो बड़ी अहम बात है ये मेरा अपना वजदान, किसी मुफस्सिर ने ये बात नहीं ज़िक्र की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से डरते हुए मैं इसको बयान कर रहा हूँ। मुझे लगता है ऐसा है कि जैसे ये हरूफ जो है ना, इन हरूफ का उस वक्त, उस दौर में जब ये कुरान मजीद नाजिल हो रहा था, इनका मानी भी था, इनका मतलब भी था, इनका कोई इशारा भी था जिसको समझ रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समझ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी समझ रहे थे, और उस इलाके के अरब के जो दस्तूर के लोग थे वो भी समझ रहे थे। और इसकी दलील ये है कि किसी ने भी ये एतराज़ नहीं किया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिफ लाम मीम से क्या मुराद है। अगर इसका इल्म सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद होता, बाकी उम्मत को ना होता, तो फिर कोई तो सहाबी आता और आके ये एतराज़ करता। वरना कुफार ने बहुत बड़े एतराज़ात किए हैं, काफरों ने इतने एतराज़ात किए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा नबी है, खाता है पीता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की नफ़ी किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर एतराज़ किया, कुरान मजीद की हिकमत पर एतराज़ किया है, हत्ता कि मच्छर और मक्खी की जो मिसालें अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर दी हैं इन पर भी एतराज़ किया है। तो फिर ये अलिफ लाम मीम इन हरूफ मुक़त्तात वगैरह पर क्यों नहीं एतराज़ किया। इससे मालूम ये होता है कि उन लोगों को समझ आ गई थी और उन लोगों को पता चल चुका था कि इनका मानी क्या है और इनका मतलब क्या है और इनसे अल्लाह तबारक व तआला क्या इशारा करना चाहते हैं। इसी वजह से उन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पूछा। इसकी मिसाल हमारे इस दौर में भी मौजूद है। हम जैसे हमारे इस इलाके के अंदर भी इस तरह के हरूफ चलते हैं, जैसे कि ये डिग्रियाँ जो चलती हैं, MA, BA, PhD, LLB, ये सारी के सारी डिग्रियाँ और डिग्रियों के नाम और मुखफ़फ़ हैं। इसी तरह DPO, CPO वगैरह वगैरह ओहदों के जो हमने मुखफ़फ़ बना रखे हैं ये भी मुखफ़फ़ हैं। तो जब इन हरूफ को बोला जाता है तो कोई भी इंसान ये सवाल नहीं करता कि MA का क्या मतलब है, BA का क्या मतलब है। हालांकि कितने सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा कि MA का मतलब क्या है,
और बी ए का मतलब क्या है, मतलब यानी इन बी का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है, किसी को पता नहीं होगा। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इल्म नहीं होगा, लेकिन उनके दिमाग में ये अल्फाज बोलते ही मफहूम जो होता है उस इलाके का, वो मफहूम उनके दिमाग में आ चुका होता है। अब हमसे बाद जो लोग आएंगे, हो सकता है ये डिग्रियां वगैरह ख़त्म हो जाएं, कोई नया दौर आ जाए, तो जब किताब लिखने वाले किताब लिखेंगे, वो लिखेंगे एमए की डिग्री, तो बाद वाले लोग सवाल करेंगे कि ये एमए का मतलब क्या है, तो किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि अब किसी ने सवाल नहीं करना, किसी ने पूछना नहीं है, और इस तरह ये एमए रह जाएगा, बीए रह जाएगा, एक माना और मतलब समझ नहीं आएगा। इसी तरह शायद हो सकता है कि उस दौर के अंदर भी और इन हरूफ के मानी और मतलब भी हों और इनका इशारा भी हो, तो लोगों ने इनके इशारात को तो समझा, लेकिन इनके मानी मफहूम को समझने से उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। इसी वजह से वो दौर चला गया। फिर बाद में मुफस्सिरीन आए, उन्होंने इन अल्फाज के मानी की तरफ ज़रा तवज्जो दी, तो इनका मानी मालूम ना हो सका। इसी वजह से हर मुफस्सिर ने अपनी तफसीर के अंदर यही लिख दिया, अलिफ लाम मीम, तर्जुमा अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं। ज़ालिका अरब के अंदर इसमें इशारा बैद के लिए इस्तेमाल होता है, इसी वजह से यहाँ पर तर्जमा जो होगा वो किताब, यानी ज़ालिकल किताब, वो किताब जिसके अंदर कोई शक नहीं। तो यहाँ पर एक सवाल आता है, सवाल ये होता है, हालांकि मानी मतलब और इसका जो मफहूम है, मफहूम तो यूँ बनता है कि ये जो हमारे पास किताब है, ये कुरान मजीद, ये वो किताब है जिसके अंदर शक नहीं। यहाँ इसमें इशारा बैद का नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसमें इशारा करीब का होना चाहिए था, और वो हाजा है, यानी यूँ इबारत होनी चाहिए थी, हाज़ल किताब ला रैब फ़ीह, यानी ये किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं। तो अल्लाह पाक ने फिर इस हाजा की जगह ज़ालिका क्यों लगाया? मुफस्सिरीन इसका जवाब यूँ देते हैं, वो फरमाते हैं कि असल में जब किसी चीज़ के मकाम मर्तबा को बयान करना हो, उसकी शान व शौकत को वाज़े करना हो, उसके मकाम मर्तबे को बढ़ाना हो, तो फिर ऐसा हो जाता है कि इसमें इशारा करीब की जगह बैद का इस्तेमाल कर दिया जाता है। यानी ये जो आपके पास है, ये आपके पास नहीं है, इसका मकाम बहुत ऊंचा है और इसका मकाम और इसका मर्तबा आला है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने भी इसी रूल को इस्तेमाल करते हुए ज़ालिकल किताब लगाया है, हाज़ल किताब नहीं लगाया। तो तर्जमा यूँ कहते हैं, ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं। और अब आगे एक लफ्ज़ आता है राइब। राइब कहते हैं शक को, यानी शुबा को। जब दिल के अंदर दो कैफियतें तारी हो जाएं और कोई एक कैफियत भी राजे ना हो, यानी करें या ना करें, दोनों तरफ की जो कैफियत हैं वो बराबर की खड़ी हों, तो इसको कहते हैं शक, इसको कहते हैं राइब और इसको कहते हैं गिफ्ता वगैरह। ये सारे मुख्तलिफ अल्फाज हैं और दिल की इस कैफियत का नाम है ये शक। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कह दिया कि इस किताब के अंदर कोई शक नहीं, तो यहाँ पर भी एक सवाल होता है। सवाल ये होता है, हालांकि हम देखते हैं कि इस कुरान मजीद के शक तो हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कुरान मजीद में शक करते हैं, कुरान मजीद को अल्लाह पाक की किताब, कुरान मजीद को नहीं मानते, कुरान मजीद के अहकामात पर अमल नहीं करते, वो इस पे शक के क्या इसका इनकार करने पे उतर आते हैं। तो ये फिर कैसे कह दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये किताब है, इसके अंदर कोई शक नहीं और ना ही से कोई शक कर सकता है। उलमा इस एतराज़ का जवाब यूँ देते हैं, वो फरमाते हैं कि मुनज़्ज़लुम मिनल्लाह होने के एतबार से इसमें कोई शक नहीं, यानी ये किताब अल्लाह पाक की किताब है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कलाम कुरान मजीद नाजिल किया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, तो अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं। अगर कोई शक कर सकता है तो करे, तो इसका चैलेंज अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मजीद के अंदर दे दिया है। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा, वहाँ भी रैब का लफ्ज़ आया है, देखो, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा, अगर तुम्हारे दिल में इस कुरान मजीद के मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने में शक है, तो फिर फातु बिसूरत मिन मिस्ली, इसकी मिसल एक सूरत लेकर आओ। एक और जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, एक आयत लेकर आओ, 10 आयतें लेकर आओ, एक आयत भी लेकर आओ, एक छोटी सी छोटी सूरत ही बनाकर ले आओ। तो अगर तुम ये कर सकते हो तो ये चैलेंज है अल्लाह पाक का। और अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वज़ाहत भी बयान कर दी, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तुम अगर ना कर सको, हरगिज़ तुम कर भी नहीं सकते, क़यामत की सुबह तक ये चैलेंज है। और कोई भी ना मानने वाला कुरान मजीद की इस चैलेंज को कबूल करने पर कादिर नहीं हुआ।
हत्ता कि लोगों ने कोशिशें भी की, कई सारे लोगों ने उस दौर में जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था, अहले अरब के बहुत मशहूर शायर इकट्ठे हुए और उन्होंने कुरान मजीद की सूरतें बनाने की कोशिश भी की, लेकिन बनाया जब देखा, मुवाजना किया कुरान मजीद का और अपने उस कलाम का जो उन्होंने मन घड़त कुरान मजीद कलाम बनाया हुआ था, तो फिर उनको खुद को शर्म आ गई और इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे उनका वो कलाम, जो नज़म उन्होंने बनाई होती, इस वजह से उन्होंने खुद ही अपनी नज़में जला दी। तो अल्लाह तबारक व तआला का कौल ये लाजिम है और ये क़यामत के सुबह तक कायम है, यानी ये किताब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल हुई है, ये अल्लाह पाक का कलाम है, इसके अंदर कोई शक नहीं कर सकता। और आगे फिर आता है हुदल लिल मुत्तकीन, यानी ये हिदायत है मुत्तकीन परहेजगार लोगों के लिए। हुदन ये हिदायत है और हिदायत का दो मतलब उलमा बयान करते हैं, जैसे कि सूरत फातिहा के अंदर भी बयान कर दिया गया था कि हिदायत का मतलब होता है एक इरातुत तरीक, नंबर 2 इसार इलल मतलूब। इरातुत तरीक का मतलब होता है किसी को रास्ता दिखा देना और इसार इलल मतलूब का मतलब होता है कि किसी को पकड़ कर मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना। तो आम तौर पर इसका कोई क्लियर तो नहीं है, आम तौर पर कुरान मजीद के अंदर ये जो आयतें आई हैं इनका मफहूम यही होता है, जब हिदायत की निस्बत कुरान मजीद की तरफ हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो या किसी और इंसान की तरफ हो, तो इससे इरातुत तारीक ही मतलब लिया जाता है। और जब हिदायत की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हो, तो फिर इससे इसार इलल मतलूब ही लिया जाता है। और ये दो मानी हैं हिदायत के। तो यहाँ पर मतलब ये होगा कि ये कुरान मजीद मुत्तकीन के लिए हिदायत है, यानी मुत्तकीन को रास्ता दिखाने वाली है। और मुत्तकीन कौन लोग हैं? मुत्तकीन ये तकवा से माखूज है। तकवा का मतलब होता है डरना, यानी बच जाना, अल्लाह ताला के अहकामात पर अपने आप को सादिब रखना और अल्लाह की नाफरमानी करने से अपने आप को बचा लेना। तो यहाँ पर एक सवाल लाजिम आता है, सवाल ये होता है कि जब कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने ये कह दिया कि ये किताब हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन परहेजगार लोगों के लिए हिदायत है, तो इससे तो ये लाजिम आता है कि कुरान मजीद सिर्फ उन लोगों के लिए हिदायत है जो मुत्तकीन हैं, जो परहेजगार हैं। परहेजगारों के अलावा गुनाहगार, काफिर, मुशरिक जो लोग हैं उनके लिए कुरान मजीद कोई हिदायत नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम जो आम कलाम हो, जामे कलाम हो, और वो सिर्फ एक ख़ास किस्म के लोगों के लिए हिदायत हो, बाकी लोगों के लिए हिदायत ना हो? तो इसका जवाब उलमा ये देते हैं कि असल में कुरान मजीद है हिदायत साबरे लोगों के लिए। जैसे कि कुरान मजीद में ही अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। वहाँ अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इस कुरान मजीद को नाजिल किया गया एक मुकर्रम महीने में और ये हिदायत है सारे लोगों के लिए। हुदल लिन्नास पूरे इंसानों के लिए हिदायत है। बाकी रहा मसला यहाँ पर जो अल्लाह पाक ने सिर्फ हिदायत का निस्बत मुत्तकीन की तरफ लिया गया है, तो इसका उलमा ये जवाब देते हैं कि ये हिदायत तो सारे इंसानों के लिए है, लेकिन इस हिदायत का इस्तेफादा और इसका फ़ायदा जो हासिल करते हैं वो सिर्फ मुत्तकीन यानी परहेजगार लोग ही कर सकते हैं। कमाल दर्जे का इसका फ़ायदा हासिल वही लोग कर सकते हैं, इसके अलावा जो आम इंसान है वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो फ़ायदे के एतबार से यानी फ़ायदा इस्तेफादा हासिल करने के एतबार से ये मुत्तकीन के साथ ख़ास है। बाकी हिदायत है, जो भी इंसान का इस कुरान मजीद की तरफ तवज्जो करेगा तो उसके लिए हिदायत होगी। तो अभी मुत्तकीन की तशरीह की तरफ आते हैं। मुत्तकीन के तर्जुमे में जैसे मैंने पहले बता दिया था कि मुत्तकीन ये तकवा से है और तकवा का मतलब होता है बचना। तो यहाँ मुत्तकीन के उलमा 7 दर्जे बयान करते हैं, यानी बचने का क्या मकाम है, बचने का दर्जा क्या है और मुत्तकीन का दर्जा कितना है, इस बारे में उलमा 7 दर्जे बयान करते हैं। नंबर 1 कुफ्र और शिरक से बचना, ये सबसे अदना यानी कम दर्जे का ये दर्जा है। और इससे ऊपर फिर आ जाता है गुनाह कबीरा से बचना, फिर गुनाह सगीरा से बचना, और नंबर 4 पर आता है सुन्नत के तर्क से बचना, नंबर 5 पर आता है इस्तेहबाब यानी मुस्तहब कामों के तर्क से बचना, और नंबर 6 पर आता है उन चीज़ों से, उन गुनाहों से बचना जो बज़ाते खुद तो गुनाह नहीं है लेकिन वो गुनाह करने का एक ज़रिया बन सकते हैं, गुनाह का सबब बन सकते हैं। जैसे कि हमारे दौर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो बज़ाते खुद तो गुनाह नहीं है, उनको अगर करें तो कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उनमें पढ़ने से बहुत सारे ख़राबियों का ज़रिया बन जाता वो, लेकिन उनमें पढ़ने से इंसान गुनाह की तरफ राग़िब हो जाता है और गुनाह का वो सबब और दाया बन जाते हैं। इसी वजह से उन चीज़ों से बचना ये 6ठे नंबर पर मुत्तकीन यानी तकवा की दर्जा है। और आखिरी नंबर पर 7वें नंबर पर आता है कि अल्लाह के अलावा बाकी सारी चीज़ों से ताल्लुक़ तोड़ना, बच जाना, सिर्फ अल्लाह पाक की तरफ अपनी रुख और अपनी जेहत और अपना चेहरा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे कर देना, ये तकवा का यानी मुत्तकीन का आखिरी दर्जा है। तो यहाँ पर एक सवाल होता है
सवाल ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन कि ये कुरान मजीद हिदायत है मुत्तकीन के लिए। हालांकि मुत्तकीन तो कहते हैं उनको हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मान कर अल्लाह पाक के हुक्म पर आ जाए और डर जाए अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानी करने से। तो ये जो मुत्तकीन होते हैं इनको पहले हिदायत मिल चुकी होती है, फिर दोबारा इन्हीं को हिदायत, ये तो दौर लाजिम आ जाएगा कि एक वो इंसान जो पहले हिदायत याफ्ता है अब दूसरी दफ़ा फिर इसी को हिदायत मिल रही है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में दौर लाजिम आता है। तो उलमा फरमाते हैं कि इसका इतराज़ का जवाब यूँ देते हैं, वो फरमाते हैं कि कोई दौर नहीं लाजिम आता। ऐसा हो सकता है कि एक चीज़ को एक दफ़ा हिदायत मिले फिर आगे दूसरी दफ़ा उसको हिदायत मिले इस एतबार से कि उसके दर्ज में इजाफा हो, उसके मकाम में इजाफा हो, उसके ईमान में इजाफा हो। तो इस एतबार से यहाँ हुदल लिल मुत्तकीन का तर्जमा ये होगा कि पहले दफ़ा इनको हिदायत मिली थी अमूमी हिदायत, ईमान की हिदायत, अब आ जाती है इनके दर्जे की हिदायत कि अगर पहले दर्जे में मुत्तकीन हैं तो अब इनको हिदायत कुरान मजीद दे रहा है दूसरे दर्जे की तरफ, दूसरे में है तो तीसरे की तरफ, तीसरे में है तो चौथे की तरफ, इसी तरह रफ्ता रफ्ता ये जो 7 दर्जे बयान किए गए हैं यानी इन 7 दर्जों की तरफ इन मुत्तकीन को हिदायत मिल रही है। तो अब ये माना मफहूम समझ आ गया कि कुरान मजीद ये हिदायत है किन लोगों के लिए, मुत्तकीन और परहेज़गार लोगों के लिए ये कुरान मजीद हिदायत है। अब रहा मसला ये कि अब इंसान के दिमाग में ये बात आती है कि अल्लाह पाक ने इतने जो उम्दा अंदाज में ये जो बयान कर दिया कि कुरान मजीद सारा का सारा कुरान मजीद हिदायत ही मुत्तकीन परहेज़गार लोगों के लिए, तो इंसान के दिमाग में सवाल आता है कि ये मुत्तकीन लोग हैं कौन, आखिर इनकी शान क्या है और इनकी सिफतें क्या हैं, इनका कोई तारुफ तो बताया जाए ताकि पता चले कि मुत्तकीन ये होता है, तो हम अपने अंदर की भी वो सिफतें और वो आदात लेकर आएँ और हम भी अल्लाह पाक के परहेज़गार और मुत्तकीन बंदे बन सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत के शुरू में यानी सूरत बकरा के शुरू में ही मुत्तकीन की 6 सिफ़ात को जिक्र कर दिया है ताकि इंसान को पता चल सके कि मुत्तकीन है कौन और मुत्तकीन की सिफ़ात क्या होती हैं। उनमें पहली सिफ़त अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, यानी मुत्तकीन वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए गैब के इल्म पर ईमान रखते हैं, यानी पोशीदा चीज़ों पर भी वो ईमान रखते हैं। जिस तरह ज़हरी चीज़ों पर ईमान रखते हैं इसी तरह पोशीदा चीज़ों पर भी ईमान रखते हैं। ये जो जुमला है ये उन लोगों के लिए ज़द है जो आजकल के आम तौर पर ये जो न्यू किस्म के सकालर उठे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि जो चीज़ हमें समझ नहीं आती हम उसको कैसे मानें। तो ये हिदायत का पहला दर्जा यानी मुत्तकीन की पहली सिफत, ईमान का जो पहला दर्जा अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वो ये बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो समझ नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से, कुरान मजीद के बताने से वो हमने उनको मानना है और उन पर भी ईमान लेकर आना है। ये पहला दर्जा है मुत्तकीन का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती, हम कैसे मान लें, हमें समझाया जाए, हमारे दिमाग को उसकी तरफ लाया जाए, दलाइल के साथ हमें समझाया जाए। तो इसी समझाने समझाते उन्होंने कब्र के अजाब से इनकार कर दिया, आखरत से, जन्नत से, जहन्नम से इनकार कर दिया, बहुत सारी चीज़ों का इनकार करके वो गोया कि एक दहरिया फ़िरके की तरफ लेके जा रहे हैं उम्मत को। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहली सिफत बयान कर दी कि मुत्तकीन वो लोग होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला की पोशीदा चीज़ों पर भी ईमान रखते होंगे जिन चीज़ों का अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बता दिया, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक के बताने से वो इल्म दे दिया है। फिर यहाँ बात चली है ईमान की, तो थोड़ी सी बात ईमान पर कर ले। यहाँ ईमान जो है ना ये अमन से माखूज़ है और अमन का मतलब होता है मुतमईन हो जाना, यानी जैसे कि अभी मैंने बताया दिल के अंदर 2 जिहत हैं, कनेक्शन दिल का जो है 2 तरफा है, यानी एक करना ना करना, मुखालिफ जिहत भी दिल के अंदर मौजूद है। तो ईमान का मतलब क्या होता है, ईमान का ताल्लुक सारा का सारा दिल के साथ है। तो ये ज़िद है उसी रैब की यानी शक की ज़िद है। शक को दूर हटाकर जब इंसान का दिल किसी एक तरफ राजे हो जाता है, किसी एक तरफ अपने दिल के अंदर वो पुख्ता हो जाता है, तो इसको कहते हैं ईमान और इसको कहते हैं मुतमईन, यानी अपने दिल में किसी एक जानिब पर पक्का हो जाना और उस पर मुतमईन हो जाना, इसी को कहते हैं ईमान। हम भी आम तौर पर सोचते हैं, जब भी हमारे दिमाग में कोई ख्याल आता है तो दिल से हम सोचने लग जाते हैं कि इस काम को करें ना करें, करें ना करें। जब दोनों जानिब बराबर हों तो इसको कहते हैं शक,
ये शक में पड़ा हुआ है। लेकिन जब एक जानिब झुक जाए, ख़त्म हो जाए और एक जानिब पर इंसान अटल होकर फैसला कर ले तो इसको कहते हैं ईमान और इसी को कहते हैं मुतमईन। तो अल्लाह तबारक व तआला का जो दीन है, इस दीन पर भी अल्लाह पाक ने यही हुक्म दिया है कि दिल के साथ इसको तस्लीम करो और ईमान लेकर आओ, यानी दिल की एक जिहत राग़िब कर लो इसकी तरफ, एक जिहत इसकी तरफ लेकर आओ और गालिब कर लो एक जिहत को, और ईमान दिल के अंदर मुतमईन हो जाओ और दिल से उस चीज़ को तस्लीम कर लो। तो यहाँ ईमान बिल गैब का जो तज़किरा हुआ है, इसका मतलब भी यही है कि जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही लेकिन हमें पता चल चुका है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है, तो हम अपने दिल में उसके मुखालिफ सिमत को नहीं लेकर आएंगे, बल्कि उनके साथ उनके बताई हुई चीज़ों पर ईमान लेकर आएंगे और उन पर पख्ता हो जाएंगे। और इसी तरह दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो बात हुई है वो आई है गैब की। अब यहाँ पर समझ लें कि गैब कहते किसको हैं। गैब का लुग़वी माना जो है वो है पोशीदा होना, यानी किसी चीज़ का हमारे हवा से पोशीदा होना, सामने नज़र ज़ाहिर ना होना। और इस्लाह के अंदर कहते हैं कि गैब उस चीज़ को कहते हैं जो हमारे हवा से खमसा में ना आए, यानी जिसका इतराक हवा से खमसा के ज़रिए ना हो, मुमकिन ही ना हो, और ना अक्ल का गौर व फिक्र और अक्ल का तफक्कुर उस पर कादिर हो। तो ये 6 चीज़ें गोया के हो गई। 5 हमारे हवास, जैसा कि हम समझते हैं, एक चखने का हासा, एक देखने का हासा, और एक सुनने का हासा, एक छूने का हासा और एक सूंघने का हासा। ये हमारे जिस्म के अंदर 5 किस्म के अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के दरवाजे रखे हैं। इनके ज़राए से, यानी इन्हीं वास्तों से हम बहुत सारी चीज़ों का इल्म हासिल करते हैं और अपने दिमाग को उसको देते हैं। और छठे नंबर पर आता है, फिर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हवा से एक चीज़ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन दिमाग कोई ऐसा प्लान बनाता है, कोई ऐसा आला ईजाद कर देता है, कोई ऐसा तरीका इख्तियार कर देता है जिस आले के ज़ोर के ऊपर या जिस टेक्निक के ज़ोर के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें जो हवा से नहीं हासिल कर रहे होते उसके ज़रिए से हम कर लेते हैं। तो ये भी इल्म गैब नहीं होगा, यानी इन सब चीज़ों से निकल कर बाकी जो होगा वो गैब होगा। बाकी कौन सा गैब होगा? यानी वो इल्म जो अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए बता दिया है, और वही के ज़रिए जो हम अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा दिया है, वो होगा गैब, यानी उसके ज़रिए जो आया है वो गैब कहलाएगा। और अब दूसरे नंबर पर आती है सिफत कुरान मजीद में मुत्तकीन की, वयुकीमून सलात, यानी मुत्तकीन वो हैं जो नमाज को अदा करते हैं, नमाज को इस्तिकामत के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी एक मसला समझ से, ये मुत्तकीन की जो नमाज सिफत बनेगी ये उस वक्त बनेगी जब कोई इंसान अपने आप को नमाज के लिए आदी बना लेगा और इस्तिकामत इख्तियार कर लेगा। बग़ैर इस्तिकामत के अगर 1-2 दिन नमाज पढ़ ली, कभी एक पढ़ ली, तो ये मुत्तकीन की सिफत नहीं होगी। तो मुत्तकीन की सिफत यही है कि इंसान जो है ना 5 वक्त मुकम्मल नमाज और बाकी जो फ़राइज़ हैं नमाज के एतबार से, यानी जुम्मा, ईदैन वगैरह, और वो भी अदा करे और मुकम्मल फ़राइज़ नमाज के अदा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पूरा करे। ये मुत्तकीन की सिफत होगी। और यही सिफत है जो कुरान मजीद के अंदर बहुत दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी शान व शौकत भी बयान की है। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वाले हो सब्र से और नमाज के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला से मदद हासिल करो। तो वहाँ नमाज से मुराद यही नमाज होगी जो मुकम्मल 5 गाना नमाज होगी और मुकम्मल तरीक़ाकार के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मुताबिक पढ़ी जाएगी। वही नमाज इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला की मदद का एक ज़रिया बनेगी। वरना अगर 1-2 दिन नमाज पढ़ी या कभी कभी कभार नमाज पढ़ी तो वो उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद नहीं फरमाया। और इसी तरह एक और जगह पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, के बेशक नमाज जो है ये इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो वहाँ नमाज से भी यही नमाज मुराद होगी जो इस्तिकामत वाली नमाज होगी, जो मुत्तकीन की सिफत है। अगर इस्तिकामत वाली नमाज नहीं है तो बहुत सारे लोग हम देखते भी हैं कि नमाज सुबह की पढ़ते हैं या 1-2 नमाजें और पढ़ लेते हैं, फिर भी गुनाहों में लगे हुए हैं। उनकी वजह यही होती है कि इस्तिकामत के साथ और बाकायदगी के साथ, जिसको कहते हैं नमाज इस्तिकामत, या जिनको कहते हैं मुत्तकीन की जो सिफत है नमाज, वो नमाज पंजगाना नमाज पाबंदी के साथ नमाज अदा करना, ये नमाज नहीं अदा करते। इसी वजह से नमाज का वो असर और वो तासीर भी नहीं रहती। नमाज का असर है कि ये बुरे कामों से भी बचाती है, बेहयाई से बचाती है, लेकिन इस नमाज को अगर अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो इसका असर है, वरना इसका असर नहीं होगा। और तीसरे नंबर पर जो सिफत आती है वो सिफत आती है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यानी अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दिए हुए में से खर्च भी करते हैं। ये तीसरी सिफत है मुत्तकीन की।
तो यहाँ खर्च से मुराद इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते के अंदर अपने माल को खर्च करना। और ये जो माल को खर्च करना है, ये बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इसकी वजाहत बयान की है, वरना यहाँ लफ्ज़ों को अगर पढ़ा जाए तो अल्फाज के अंदर माल नहीं है, बल्कि अल्फाज के अंदर बहुत सारे जैसे मुफस्सिरीन बयान किया है। और ये है कि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला का जो मकसद है वो मकसद ये है कि यहाँ पर माल सिर्फ खर्च करना मुराद नहीं है, बल्कि जो कुछ अल्लाह पाक ने आपको दिया है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। जो कुछ से मुराद अल्लाह ने इल्म दिया है तो इल्म खर्च करो, अल्लाह ने हुनर दिया है तो हुनर खर्च करो, अल्लाह तबारक व तआला ने कोई सलाहियत दिया है, कोई ताकत दिया है, अल्लाह पाक ने कोई जोश दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने कोई अक्ल के अंदर, इसके अक्ल में कोई ऐसे दिमाग में कोई ऐसी टैलेंट है, कोई ऐसा इसका खूबी है, तो ये सारी चीज़ें जो सलाहियतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, उनको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और बाकी अगर अल्लाह पाक ने माल दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ओहदा दिया है, अल्लाह पाक ने कोई नौकरी ऐसी मुलाजमत दी है जिस पर बैठ कर इंसान काम कर सकता है, तो उस काम को भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, यानी अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक खर्च करे। और इसी के ज़ुमरे में आती है वो बात कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो सिर्फ सैन करने से उसका सैन चलता है, उसका एक सिग्नेचर चलता है, तो वो सिग्नेचर, वो साइन जो है ना, वो भी अल्लाह के रज़ा के लिए अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर ही खर्च करे। और अब इसके बाद चौथे नंबर पर जो मुत्तकीन की सिफत आती है वो आती है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, यानी उस चीज़ पर ईमान लेकर आते हैं जो चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह पाक ने नाजिल की, यानी इससे मुराद कुरान मजीद है। और कुरान मजीद पर भी वो ईमान रखते हैं। तो कुरान मजीद पर ईमान रखने का मतलब क्या है और इसका मफहूम क्या है, उलमा ने इसका भी मफहूम बयान किया है। उलमा बयान करते हैं कि कुरान मजीद पर ईमान लाने के एतबार से 3 अज्जा ऐसे हैं जिन पर हमें ईमान लाना ज़रूरी है। पर एक, कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने ही नाजिल किया है। ये अल्लाह के अलावा किसी और का कलाम नहीं है, सिर्फ अल्लाह पाक का ही कलाम है। यानी ये इस कलाम को, इस कुरान मजीद को अल्लाह पाक का कलाम माना कुरान के ईमानियात में से शामिल है। और दूसरे नंबर पर कि कुरान मजीद को अल्लाह पाक ने नाज़िल भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किया है। अगर कोई इंसान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा इस कुरान मजीद को पढ़ता भी है और इसको कुरान मजीद भी मानता है, लेकिन ये इस चीज़ का कायल है कि कुरान मजीद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और पर नाज़िल हुआ है, तो वो भी ईमानियात में से निकल जाएगा। वो कुरान मजीद पर उसका कोई ईमान नहीं होगा, कि ईमान में ये शामिल है कि कुरान मजीद कलाम भी अल्लाह का है और ये नाजिल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ है, पूरा नाजिल हुआ है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान मजीद पर ईमान तो रखते हैं, पढ़ते भी हैं, वो ये कहते हैं कि कुरान मजीद कुछ अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, कुछ किसी और पर नाजिल हुआ है, तो वो भी ईमानियात में से निकल जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पर जो बात आती है वो ये बात आती है कि कुरान मजीद ये महफूज है, यानी इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह तबारक व तआला ने खुद लिया है और ये क़यामत तक महफूज है। जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक कुरान मजीद को नाज़िल भी हमने किया है और इसकी हिफाजत करने वाले भी अल्लाह पाक खुद हैं। तो इस एतबार से जैसे कुरान मजीद नाज़िल हुआ है वैसे का वैसा महफूज है और क़यामत तक ये महफूज होगा, इसके अंदर ज़रा बराबर कोई कमी कोताही नहीं हो सकती। इसी तरह बाज़ लोग जो कहते हैं कि कुरान मजीद मुकम्मल नहीं है, ये इसके अंदर कुछ पारे ख़त्म हैं और कुछ पारे इसके निकल गए हैं, और कुछ जो ना सहाबा कराम में इसी तरह तोहमतें निकालते हैं कि सहाबा कराम ने कुछ ही पारे छुपा लिए थे, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, इस तरह की बातें करने वाला वो ईमान कुरान मजीद पर ईमान लाने से खारिज हो जाएंगे। तो कुरान मजीद पर ईमान लाने के 3 अज्जा हैं कि अल्लाह पाक कलाम है, दूसरे नंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, तीसरे नंबर पर ये कुरान मजीद महफूज है। जैसा अल्लाह का कलाम है वैसा ही हमारे पास महफूज है जो गत्तों के अंदर बंद है। और इसी तरह 5वें नंबर पर जो सिफत आती है मुत्तकीन की वो ये आती है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, उस पर भी ईमान लेकर आओ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल हुई, यानी वो किताब तौरात, ज़बूर, इंजील वगैरह किताबों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि उन पर अमूमी ईमान लाना ज़रूरी है, यानी वो अल्लाह की किताबें थीं, बाकी अल्लाह पाक ने इनको नाजिल किया, वो अल्लाह की किताबें थीं। अब जो दुनिया के अंदर मौजूद हैं वैसी नहीं है जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला नाजिल की, इनके अंदर रद्द बदल हो चुका है। जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमा दिया है, फ़वाइलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह। ये इससे ये बात समझ आती है कि कुरान मजीद के अलावा जितनी किताबें थीं पहले वो अल्लाह पाक की तरफ से आई थी, फिर उनके अंदर उन लोगों ने रद्द बदल कह दिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उन किताबों की हिफाजत ज़िम्मा अपने ज़िम्मा नहीं लगाया। और छठी और आखिरी सिफत जो है वो मुत्तकीन के लिए है, वह बिल आखिरत हुम यूक़िनून, यानी वो आखिरत पर ईमान भी रख। और यहाँ आखिरत से मुराद जो होगा वो इंसान की मौत के बाद की जो ज़िंदगी है वो मुराद है,
मरने के बाद यानी कब्र के बाद खड़ा होना, क़यामत के हालात, हिसाब व किताब, जन्नत जहन्नम, वो वहाँ के सारे मामलात जो है ना वो सारे के सारे इन आखिरत में आएंगे और इन पर यकीन रखते हैं। यकीन का मतलब ये होता है कि पुख्ता दिल के साथ उनको मानते हैं और दिल के साथ उन पर यकीन रखते हैं। और ये जो छठी सिफत है, ये छठी सिफत मुत्तकीन को कुफार से, मुशरिकीन से मुमताज़ करती है, क्योंकि जो काफिर हैं, काफिरों और मुसलमानों में जहाँ बहुत सारी चीज़ों और का फ़र्क है, वहाँ मेन एक चीज़ ये है, बुनियादी तौर पर फ़र्क ये है कि मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, मुसलमान बंदा उसको मानता है और काफिर बंदा उसको नहीं मानता। ये बुनियादी तौर पर फ़र्क है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने छठी ये सिफत जो लगाई है वो यही लगाई है कि वो आखिरत की ज़िंदगी को भी मानते हैं और उस पर यकीन रखते हैं। और फिर इन 6 सिफ़ात को बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यानी यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से, अपने रब की तरफ से यानी अपने परवरदिगार की तरफ से कामयाबी पर होंगे और कामयाब होने वाले लोग भी यही होंगे। यानी अब ये जो मुत्तकीन परहेज़गार लोग हैं जो इन 6 सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ़ हैं, अब उनका मकाम मर्तबा क्या है कि दुनिया के अंदर भी अपने रब की तरफ से हिदायत है। यहाँ हिदायत से मुराद, हिदायत की निस्बत चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, तो यहाँ इससे मुराद इसार इलल मतलूब होगा, यानी अल्लाह पाक की तरफ से अब ये पक्के के पक्के हिदायत पर हैं और ये मंज़िल मक़सूद तक पहुँच चुके हैं। चूँकि क्यों, इस वजह से कि इन्होंने अपने आप को इन 6 सिफ़ात के अंदर पाबंद कर दिया है, तक़वे के सिफ़ात के अंदर आ गए हैं और अपने आप को दीन पर लगा लिया है। जब इन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला का आगे काम था। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इनको हिदायत दे दी है, इनको मंज़िल मक़सूद तक पहुँचा दिया है। और इसी तरह दूसरा जो जुमला है वो उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यानी यही वो लोग हैं जो कामयाब होंगे, कामयाबी के तमगा भी इन्हीं के हाथ में होगा, यानी दुनिया के अंदर भी हिदायत पाएं और आखिरत के अंदर भी कामयाब होंगे। यहाँ मुफ़लिहून से मुराद आखिरत के अंदर कामयाबी है। और आगे फिर अब आते हैं दूसरे दर्जे के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है। यहाँ इस सूरत बकरा के अंदर 3 इंसानों के 3 किस्म के यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने, पहले नंबर पर वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की वही को मानने वाले हैं यानी मुत्तकीन, दूसरे नंबर पर वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की वही को नहीं मानने वाले, इनकार करने वाले हैं यानी कुफार। अब इन आयतों के अंदर ये जो 2 आयतें आई हैं, इन आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन कुफार का जिक्र किया है जो अल्लाह तबारक व तआला की वही को, अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक पक्की बात यह है कि इन काफिरों को अगर आप डराएं या ना डराएं इनके लिए बराबर है। ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे। तो ये जो काफिर हैं ये पक्के अपने कुफर और इनाद में, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ये पक्की इनके ऊपर एक मोहर लगा दी, इनको गिरफ्त कर दी कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ईमान लाने वाले नहीं हैं, ये अपने कुफर पर पक्के हैं। इस वजह से इन पर आपकी मेहनत करना और इनको ईमान की दावत देना बेफायदा है। तो अब यहाँ पर बात चली है कुफार की, तो कुफार की किस्मों को भी समझ लें ताकि इंसान के दिमाग में ये कुफार की तकसीम जो है ना ये भी समझ आ जाए। उलमा इन कुफार को 2 किस्मों में तकसीम करते हैं बुनियादी तौर पर। नंबर 1 कुफार असली, नंबर 2 काफिर मुर्तद। काफिर असली वो है जो बुनियादी तौर पर शुरू से ही पैदा ही काफिर हुआ हो और उसको कलमा तौफीक ना हुआ और मरा हो इसी कुफर पर, इसको कहते हैं काफिर असली। और मुर्तद किसको कहते हैं कि पहले तो वो मुसलमान होता है, यानी उसने कलमा भी पढ़ा और इस्लाम को कबूल भी किया, लेकिन बाद में इसका इनकार कर दिया या इस्लाम के किसी ऐसे अहम जुज़ का इनकार कर दिया जो शिआर अल्लाह है, तो इस वजह से वो काफिर हो गया। इसको कहते हैं मुर्तद, यानी पहले इस्लाम लाने के बाद फिर इस्लाम को छोड़ देने वाले को मुर्तद कहते हैं। ये भी काफिर की एक किस्म है। फिर इन दोनों किस्मों की 2 किस्में उलमा करते हैं। नंबर 1 कुफार असली मुलईन और कुफार असली मुनाफिक। इसी तरह मुर्तद की भी 2 किस्में कहते हैं, मुर्तद मुलईन और मुर्तद मुनाफिक। मुर्तद असली मुलईन, जो काफिर असली मुलईन है, इसका क्या मतलब है कि वो काफिर जो बुनियादी तौर पर ही काफिर है और फिर वो कुफर पर ही मर गया और इस्लाम को उसने कबूल ही न किया। और इसी तरह असली मुनाफिक काफिर कौन है, वो मुनाफिक काफिर है जो
ज़बान से तो ले आया ईमान, लेकिन दिल के अंदर अभी उसने कुफर रखा हुआ है, सही तरीके से उसने इस्लाम के अहकामात को नहीं माना। इसी तरह मुर्तद की भी दो किस्में हैं, मुर्तद मुलैन और मुर्तद मुनाफिक। मुर्तद मुलैन वो होता है जो जिसने कुफर इख्तियार किया और कुफर इख्तियार करने के बाद मर गया, फिर उसने इस्लाम को कबूल ना किया। और मुर्तद मुनाफिक वो होता है जिसने कलमा कुफर भी इख्तियार किया, इस्लाम की किसी जुज़ को छोड़ भी दिया और साथ साथ फिर वो इस्लाम लेकर आया और दिल से अभी भी उसी चीज़ पर पुख्ता है, यानी कुफार को पुख्ता है और इस्लाम के तौहीद के चीज़ों को वो दिल से तस्लीम नहीं करता। फिर ये जो पहली किस्म है ना कुफार की, यानी काफिर असली मुलैन, इसके उलमा 4 किस्में बयान करते हैं। दहरी यानी वो काफिर जो किसी को खुदा नहीं मानते, किसी चीज़ को खुदा भी नहीं मानते, कायनात के अंदर उनका कोई खुदा है ही नहीं। मुशरिक दूसरे नंबर पर, यानी वो लोग जो अल्लाह को खुदा तो मानते हैं लेकिन अल्लाह के साथ किसी और को भी खुदा मानते हैं। और तीसरे नंबर पर मजूसी, यानी मजूसी वो हैं जो अल्लाह को खुदा नहीं मानते, बाकी सारी चीज़ों को खुदा मानते हैं। किसी चीज़ को, किसी लकड़ी को, किसी बुत को, किसी आग को वो खुदा बनाकर, चांद को या सूरज को, किसी चीज़ को खुदा बनाकर उन्होंने खुदा उसको तस्लीम किया, अल्लाह को उन्होंने खुदा नहीं माना हुआ। और आखिरी और चौथे नंबर पर आते हैं अहले किताब, यानी वो अहले किताब जो पहली वहियों को मानते हैं, तौरात इंजील को पढ़ते हैं अपनी मर्ज़ी के बाद, फिर उन्होंने आकर कुरान मजीद की दावत को कबूल नहीं किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानने की वजह से वो भी काफिर हो गए हैं। इसी वजह से ये भी काफिर हो गए, अगरचे वो अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को भी मानते हैं, लेकिन अहकामात को मानने के बावजूद वो अल्लाह तबारक व तआला के इस दीन को, यानी कुरान मजीद के तौहीद को नहीं मानते। और यहाँ जो इन्नल्लज़ीना कफ़रू में काफिर मुराद है, यहाँ काफिर से मुराद काफिर असली मुशरिक मुराद हैं, जो अहले अरब के मुशरिक थे वो मुराद हैं, यानी जो खुदा के साथ किसी और को भी खुदा उन्होंने बनाया हुआ था। और यहाँ पर एक सवाल होता है, सवाल ये होता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको डराओ या ना डराओ, इनके लिए पक्का ये काफिर इस्लाम नहीं लाएंगे, ये ईमान नहीं लाएंगे, ला युमिनून, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो जब अल्लाह ताला ने ही कह दिया कि ये ईमान नहीं लाएंगे, तो फिर इनके लिए ये तौहीद और इनके लिए तबलीग और इनके लिए ये दावत किस काम की, और इनको फिर सज़ा आखिरत में किस चीज़ की मिलेगी, और इनको सज़ा किस चीज़ की मिलेगी? जवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए ये जो तौहीद, ये जो वही और ये जो सिलसिला जारी रखा है, ये सिलसिला इस वजह से जारी रखा है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इनका जो आखरत का उज़र है वो उज़र मिटाना चाहते थे। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि काफिर आएंगे, वो कहेंगे कि अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व तआला हमारे पास अगर कोई डराने वाला आता तो हम उसकी बात मान लेते। तो इनकी ये हुज्जत तमाम करने के लिए, इनकी हुज्जत को ख़त्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनके पास वही भी भेजी, नबी भेजा, ताकि आखरत के अंदर ये ना कह सकें कि अल्लाह पाक हमारे पास कोई ईमान लाने, हमारे पास कोई डराने वाला या हमारे पास हमें कोई समझाने वाला नहीं आया था। इस वजह से अगर कोई आता तो हम ईमान लेकर आते। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों के ऊपर मुहर लगा दी है, व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, और इनके कानों के ऊपर भी अल्लाह पाक ने पर्दा मुहर लगा दी है, और इनके आँखों के ऊपर पर्दा है, वालहुम अज़ाब, और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखा है। तो यहाँ पर भी एक सवाल आता है, सवाल ये होता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला खुद कह रहे हैं कि इनके कान भी बंद है, इनकी आंखें भी पर्दे में है, उनके दिल भी जो है ना ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, कुलूब से मुराद अक़ूल है, यानी इनके अक़ल के ऊपर भी पर्दा पड़ा हुआ है, इनके दिल के ऊपर भी, इनके दिमाग के ऊपर भी, इनके कानों के ऊपर भी। तो सारे रास्ते जब अल्लाह ताला ने बंद कर दिए हैं तो अब अल्लाह पाक इनको आखिरत में सज़ा किस चीज़ की देगी? हालांकि अल्लाह पाक अगर इनके लिए तौहीद के और इनके ये इल्म के दरवाज़े खोल देता तो ये समझ लेते और दीन को हासिल कर लेते। तो इस सवाल का जवाब उलमा ये देते हैं कि यहाँ पर ये जो बयान किया गया ना ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, ये बतौर जुमला तमसील के है, यानी अल्लाह एक मिसाल दे रहे हैं, इनको समझा रहे हैं। गोया कि इनके सामने कुरान पढ़ा जाता है, नबी इनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अल्लाह पाक की वही को नहीं समझते, अल्लाह ताला के अहकामात पर नहीं आते। ये क्यों नहीं आती? इस वजह से नहीं आते गोया कि ये सुन्नी अनसुनी इन्होंने की हुई है, दिल के साथ इसको तस्लीम नहीं करते, कानों के साथ सुनते नहीं है, सुनी अनसुनी कर देते हैं, आंखों के साथ देखते नहीं है। तो इनकी एक मिसाल ऐसी अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी है कि गोया कि इनके आंखें कान ये सारी चीज़ें बंद हैं, ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी सलाहियत सलब नहीं की। अगर अल्लाह पाक सलब कर लेता सलाहियतें इनकी तो फिर ये एतराज़ हो सकता था कि आखिरत में सज़ा किस काम की। अल्लाह ताला ने इनकी समा नहीं सलब की, इनकी अक्ल अल्लाह पाक ने मफ़हूम नहीं माऊफ़ नहीं की, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको समझ दिया है और इनको अल्लाह तबारक व तआला ने शऊर दिया है। अगर ये इसको अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई सलाहियतों को अल्लाह के रास्ते पे खर्च करें तो फिर ये ईमान ला सकते हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इन आयतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।